کھلی نہ ہو اور اس کی تعریف کا نشہ، ستائش کا نشہ، ہاللویا، اس کا جلال یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جلال بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو کھولنا شروع کیجیے اس کے سامنے، اونڈیلنا شروع کیجیے۔ یاد رکھیں جب ہم خالی ہوں گے تب وہ ہمیں بھرے گا، تب وہ ہمیں اپنے جلال سے بھرے گا۔ اور میں ایک بڑی انوائنٹنگ کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں آج خدا ہمیں بڑی انوائنٹنگ میں لے کر جائے گا، آج خدا ہمیں بڑی پریزنس میں لے کر جائے گا۔ میرے بھائی میری بہنوں تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو خالی کرنا شروع کریں، دنیا سے خالی کرنا شروع کریں، گھر کی باتوں سے خالی کرنا شروع کریں، گھر کی چیزوں سے خالی کرنا شروع کریں۔ ہاللویا، کہیں یسوع جی آج تو مجھے تم سے بھر دینا، آج تو مجھے اپنے جلال سے بھر دینا، آج مجھے اپنی پریزنس سے بھر دینا۔ اب میں بھرنے کے لیے آئی ہوں، میں بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج مجھ سے بول، آج مجھ سے بول، میں تیری آواز سننا چاہتی ہوں، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ ہاللویا، یاد رکھیں کہ اس کی آواز ہماری زندگیوں میں ایک ڈیپ ٹرانسفارمیشن لے کر آتی ہے، اس کی آواز ہمیں تبدیل کرتی جاتی ہے، اس کی آواز ہمیں نیا بناتی جاتی ہے، اس کی آواز ہماری بونڈیجز کو بریک کرتی ہے۔ میرے عزیزوں تیار ہو جائیں، کہیں یسوع مجھ سے بول، آج مجھ سے بول، آج مجھ سے کلام کر۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیرے سندر نام میں مانگ لیتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ خدا یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے میں پاسٹر سرفراز کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان میں آ سکوں۔ مجھے آپ میں سے آپ بتائیں گے کہ کتنے لوگ میرے ہسبینڈ کو جانتے ہیں، پروفیسر الیگزینڈر کو؟ کتنے لوگ ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے اور میرے ساتھ آپ نکالیے زبور کی کتاب 84 زبور۔ میرا تھوڑا سا طریقہ ڈفرینٹ ہے کہ میں نے کبھی بھی کہیں پہ میٹنگ لینی ہوتی ہے، گھر میں لینی ہو یا کہیں پر جا کر، تو میں پہلے اس سے پوچھتی ہوں کہ مجھے بتا میں کس کے پر بولوں، اور رات کو بھی جب میں بیٹھی ہوں تو مجھے آواز آئی کہ تم کس کے پر بتا، اور جب ہولی اسپرٹ بولتا ہے تو میرے عزیزوں کو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ برکت آتی ہے جو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی۔ آمین۔ چلیں آپ کے سامنے میں پڑھوں گی میر مغنی کے لیے گیت کے سر پر بنی کورا کا مضمون۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلے، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس بریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھتی۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا دیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یہ زبور میرا فیورٹ جس کو کہتے ہیں زبور ہے، اور جب میں اس کو گاتی بھی ہوں تو مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ میری جان چاندی تیری بارگاہ میں، میرا من میرا تن بھی کرتا سنا ہے۔ اور سم ٹائمز میں یہ جو سینٹینس ہے میں اس کو 20 دفعہ گاتی جاتی ہوں، اور ایک دم اس کا ابر چھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حضوری چھانا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں آج میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، دنیا میں کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اس کی حضوری قیمتی ہے، جتنا اس کا ہم دنیا میں رہ کر بہت چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہو سکتا ہے بہنیں کپڑوں کی تلاش میں ہوں، بھائی پیسے کی تلاش میں ہوں، بہنیں زیورات کی تلاش میں ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں
पैसे कर लें, आप बेतहाशा पैसा इकट्ठा कर लें, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी आपको खुदा की प्रेजेंस में मिलेगी। हालेलुया। और आप इसके लिए जुस्तजू करना शुरू करें ताकि आप इस चीज का एक्सपीरियंस कर सकें, आप इस चीज का तजुर्बा कर सकें कि कैसे उसकी हजूरी में कामिल शादमानी। कलाम में लिखा है उसकी हजूरी में क्या है? कामिल शादमानी है। और आज हम बहुत से खादमों को देखते हैं, खादमाओं को देखते हैं, और जैसे बेटे ने प्रस्तिश की, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। और हम क्या करते हैं, बड़ी चीजों की तबदोलते होते हैं। समटाइम्स हम कलाम में सुना रहे होते हैं कि मेरी मशहूरी हो जाए, हम गीत गा रहे होते हैं मेरी मशहूरी हो जाए, लोग जान रहे कि मैं हूँ, मैं। और याद रखें ये मैं हमें नीचे लेकर जाए, ये हमें ऊपर नहीं लेकर जाए। अगर हम हमारे अंदर ये चीज है कि मैं प्रीच करूं, मैं गाऊं और उससे खुदा के नाम को जलाल मिले, उससे खुदा की रूह क्या होती है? खुश होती है। और ये कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए क्या है? रोशनी है। और अक्सर हम बाइबल में देखते हैं, हम दाऊद नबी का देखते हैं, हम दाऊद के मज़ामीर से हम खुश होते हैं। और याद रखिए ये जितने भी ज़बूर हैं ये सारे दाऊद के नहीं। और जैसे इसके ऊपर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए गीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर, ये बनी कोरा का मजमूर है। और ये जो मीर मुगन्नी है इसके लिए इंग्लिश में अगर आप देखें वर्ड लिखा है चीफ म्यूजिशियन। ये एक बड़ा म्यूजिशियन था, साज बजाने वाला शख्स था, और उसके लिए बनी कोरा का क्या है? ये ज़बूर है, उसके लिए ये ज़बूर है। और इसमें हम देखते हैं कि बनी कोरा के जो बेटे थे वो लिवाइट्स कहलाते थे, लावी कहलाते थे, और वो कुहात खानदान से ताल्लुक रखते थे। और अगर हम दूसरा तवारीख 20 बाब और उसकी 19 आयत के मुताबिक वो हैकल में क्या करते थे? खिदमत करते थे, खुदा के घर में खिदमत करते थे। कल मैंने अपनी 2 रिकॉर्डिंग्स करवाई और मुझे वहाँ पर कुछ जवान बच्चों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि वो वॉलंटियरली खुदा के लिए काम कर रहे हैं। और ये बड़ी मुबारक खाली है, वरना जहाँ कहीं भी हम जाते हैं बस पैसा पैसा पैसा। जिसने तबला बजाना उन्होंने कहना मेरे भी पैसे दो, जिन्हें बाजा बजाना उन्होंने कहना मेरे भी पैसे दो, जिसने मीटिंग करनी उसने कहना मेरे भी पैसे दो। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई और ये बरकत पाने का क्या है? राज है। और मेरे चीजों यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये कैसे जो बनी कोरा के थे ये कैसे खुदा की क्या करते थे? खिदमत करते थे। अगर हम गिनती 16 बाब देखें उसके मुताबिक कोरा और उसके जो लीडर थे 250 जो लीडर्स थे उन्होंने मूसा के खिलाफ क्या की थी? बगावत की थी, और उनको वो खुदा ने जजमेंट की और वो हलाक हो गए। कई दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है कि हम खादमों की जजमेंट शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर खुदा का खादम, हर खुदा की खादमा परफेक्ट है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा ने हमें नहीं दिया है। हमारा काम है हम खुदा में बढ़ते जाएं और खुदा में हम तरक्की करते जाएं। और यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं कि उनको पनिश किया गया। लेकिन ये जो है गिनती 26 बाब 9 से 11 के मुताबिक ये जो थे बनी कोरा के जो फर्जंद थे, बेटे थे, ये जो ग्रुप था उसके बेटे थे, इनका जो एक तरह से इनका जो ग्रुप था ये बहुत ज्यादा वर्शिप करने वाले थे और ये खुदा की मर्सी के बारे में सोचने वाले थे, खुदा के रहम के बारे में सोचने वाले थे। और आज हम भी देखें, आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो हालात है, पाकिस्तान में जो हालात है, अगर आप न्यूज़ सुने कितने लोग हलाक हो रहे हैं, कितने लोग जवान लोग यहाँ दुनिया से चल बसे, लेकिन ये उसकी मर्जी है कि आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं। आमीन। जब फेसबुक पर भी मैं देखती हूँ तो मैं यकीन करना खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा का वाकई हम पर क्या है? फजल है, और हमें कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए। उससे बढ़कर हमें इस बात का शुक्र करना चाहिए, अगर हम अपनी बैकग्राउंड देखें, कोई कैथलिक फैमिली से है, कोई प्रोटेस्टेंट फैमिली से है, कोई किसी फैमिली से है, मैं भी कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें नजात जैसा तजर्बा दिया। नजात के बाद उसने अपने पाक रूह से भरा, पाक रूह से भरने के बाद उसने अपनी लगन डाल दी।
प्रीच कर सकूं। और इन चीजों के लिए चीजों के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और याद रखिए शैतान हमारा ध्यान उस तरफ लगाता है जो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं, और हम सारा वक्त वही चीजें सोचते रहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में तो ये नहीं है, मेरी जिंदगी में तो वो नहीं है, मेरी जिंदगी में ये नहीं है, और हमारा ध्यान इसीलिए हम अपने उसी चीज में हम घूमते रहते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब में घूमते रहोगे, हाय पता नहीं कब मेरी जॉब मिलेगी। आप इस बात के लिए शुक्रगुजारी नहीं करोगे कि वो फिर भी मुझे खाने को देता है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आप हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप हैरान होगे, मुझे आज से 10 साल पहले डॉक्टर ने कहा था आप चल नहीं सकते, आप व्हील चेयर के पर आप आ जाओगे। और जब मैंने डॉक्टर की बात सुनी मैं बड़ी मायूस हुई, और फिर मैंने एकदम बाद में मैंने उस चीज को झिड़का यीशु के नाम से। मैंने कहा यीशु ने ऐसा कलाम किया कि मैंने उसका बड़ा काम करता है, मैंने उसके पूरी दुनिया में उसके नाम को जलाल देना है। मैंने कहा नाम दी ये सारी सोचो यीशु मसीह के नाम से, गो आउट फ्रॉम माय बॉडी। और मैं खुदा के फजल से आपके सामने चल फिर रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि अगर मैं अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू कर दूं, मैं तो तेज नहीं चल सकती, मैं तो ये नहीं हो सकती, कुछ देर पहले से मैंने फोकस किया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, तो फिर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, कहती थी नहीं जीसस बोल मेरे साथ, और उसने मुझे कहा अपनी कमजोरियों की तरफ ना दे, आगे बढ़, मेरी आग तेरे आगे जाएगी और अजीम काम करेगी। और मैंने जब से अपनी बीमारी के बारे में सोचना छोड़ दिया और मैंने खुदा का काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और ये बात आप लोगों के लिए भी है, अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करें, बल्कि उसकी जात के ऊपर फोकस करना शुरू करें। और जब आप उस जात पर फोकस करेंगे आप बदलते जाएंगे। हालेलुया। ए लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश। और यहाँ पर हम देखते हैं इनका रिलेशन खुदा के साथ देखते हैं कि इनका रिलेशन खुदा के साथ क्या था। वो कहते हैं तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, तेरे घर में दाखिल होना क्या ही दिलकश है, तेरी हजूरी में बैठना क्या ही दिलकश है। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आप एनालिसिस कीजिएगा अपना, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में होती है? क्या अपने फैमिली में बैठकर होती है? क्या आपको दोस्तों में बैठकर होती है? क्या फिल्में देखकर होती है? क्या ड्रामे देखकर होती है? आपकी खुशी किस चीज में? कलाम में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीजों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी चीजों की तलाश में रहते हैं। आप जितने बैठे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, आप किस चीज में खुश होते हैं? याद रखें दुनियावी चीजों की खुशी एवर लास्टिंग नहीं है, थोड़ी देर की है, बाद में फिर खत्म हो जाती है। लेकिन यीशु के पास जो खुशी है, इत्मीनान है, वो दुनिया नहीं जी सकती। और इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है ए लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। दिलकश, खूबसूरत, आंखों को लुभाने वाले, दिल को लुभाने वाले, दिल में सुकून डालने वाले, दिल में इत्मीनान पैदा करने वाले। आज दुनिया में देखे बड़े लोगों को देखा है जो पीस ढूंढते रहते हैं, इत्मीनान ढूंढते रहते हैं, और यहाँ तक कि जो बड़े हंसाने वाले हैं, बहुत से हंसाने वालों को देखा उन्होंने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, खत्म हो गए। आज के जवानों को देखो, बेटियों को देखो, बेटों को देखो, मेरे पास आते हैं क्या कि डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आप दुनिया में खोए हुए हैं। आप उसके मस्करों की तलाश करना शुरू करें, उसकी हजूरी की तलाश करना शुरू करें, और उसको कहें ताकि आप भी ये बात कर सकें और आप कह सकें तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, क्या ही दिलकश है। कई लोग सारी रात फिल्में देखकर भी बाद में फिर अफसरदा ही होते हैं। और वही अगर आप सारी रात खुदा के कदमों में बैठो, हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है, उसका बेटा तो जिंदा है, उसको तो कब्र पर भी क्या है फौकियत हासिल है, उसकी तो कब्र भी खाली है, और हम उसको बुलाते हैं, वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। कल मैं रिकॉर्डिंग में बता रही थी, मैं काउंट नहीं कर सकती कि कितने थाउजेंड्स टाइम मैंने जीसस को देखा है। और क्यों देखा? क्योंकि मैंने उसकी हजूरी की तलाश की। और एक दफा मुझे याद है कि मैं फर्स्ट मंडे मीटिंग में थी, हमारी फर्स्ट मंडे एक बड़ी मीटिंग होती है लाहौर में, और उसमें मैं गई और मैंने कहा जीसस आज मैंने तुझे देखना है, मुझे
پیسے بہت نظر آتے تھے. میں کہتی تھی میں نے تجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے آج میں نے, اور آپ یقین کریں میں نے اسٹیج کے اوپر اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا. اور میرے ہسبینڈ اس پر دعا کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں سب آنکھیں بند ہو, کوئی آنکھ کھلی نہ ہو. میں آنکھ بند کروں تو مجھے کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ان کو بولے تھے, میں نے تو آنکھیں کھول دی کیونکہ میں اس کو دیکھ رہی تھی, میں اس کا دیدار کر رہی تھی, میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اور میرے عزیزوں, اس کے مسکن کیا ہی دلکش, اس کا چہرہ کیا ہی دلکش. آج تو ہماری دعائیں فرق ہے. ہم دعا کرتے ہیں, ہم ایک لسٹ بنا دیتے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے کرتے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے کرتے, میرے بیٹے کے لیے کرتے, میرے اس کے لیے کرتے. آپ یہ سوچیں, اگر آپ کے جسمانی بچے آپ کے پاس صرف مطلب سے آئے, پیسے لینے کے لیے آئے, اور آپ کے پاس پیسے نہ آئے, آپ کا دل خوش ہوگا؟ سچی سچی بتائیں, جھوٹ نہ بولیے گا پلیز. نہیں خوش ہوگا نا. اور جو بچہ آ کر آپ کو پیار کرے, آپ کو حق کرے, آپ کی عزت لے, آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے, آٹومیٹکلی آپ اس کو زیادہ پیار کرنا شروع کر دیں. سیم اسی طریقے سے ہمارا آسمانی باپ اس بچے اس بچی کو پسند کرتا ہے جو اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. اور ہم تو ایسے ہیں کہ ہم اس کے گھر میں بھی آنا پسند نہیں کرتے, اور ہم گھر میں بھی آ کر چرچ میں کیا جانا, چرچ میں تو کچھ بھی نہیں, چرچ میں تو یہ چیز خراب ہے, یہ چیز خراب ہے, یہ چیز خراب ہے. اور میرے عزیزوں, یہ چیزیں ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں. ہو سکتا ہے چرچ میں ایک جملہ اپنی زندگی بدل دے. اور میں اکثر ایگزامپل اپنی جو میرے گھر میں کام کرتی ہے میڈ, میں اس کی دیتی ہوں. ایک دفعہ وہ بول رہی ہوتی ہے اور میرا مائنڈ ایک دم کلیک کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے. خدا کسی بھی وسیلہ سے آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے, بشرطے کہ آپ ہمبل ہوں اور اپنے آپ کو آپ خالی کریں. اور بات ہو رہی تھی تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے, خدا کی حضوری میں اطمینان ہے. آپ نے کبھی دیکھا جیسے ابھی وہ بیٹا آپ نے ورشپ کر رہا تھا اور تھوڑی سی مانگی آتی ہے تو ہماری جو حرکات و سکنات ہے, ہمارے اندر کا جو ماحول ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. تو اگر ہم اس کے مسکنوں میں رہنا شروع کر دیں, اس کی حضوری میں رہنا شروع کر دیں, تو پھر کیسا ہوگا, کتنا خوبصورت ہوگا. اور اسی لیے جو ظہور نویس ہے وہ کہتا ہے تیرے مسکن کیا ہی دلکش. کاش میرے بہنوں, میرے بھائیوں, آپ خوشی میں بھی خدا کو اول درجہ دیں, اپنے غموں میں بھی خدا کو اول درجہ دیں. خدا کو پرائیورٹی دینا شروع کریں, اس کو اول درجہ دینا شروع کریں. آگے دیکھیں, میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے. میرا دل کرتا ہے, میری جان میں کیا چیز آ جاتی ہے, جان میں آپ کی مرضی آ جاتی ہے, آپ کے ایموشنز آ جاتے ہیں. آپ کی مرضی کہتی ہے نہیں ابھی ریسٹ کر, ابھی لیٹ جا. آپ کی مرضی کہتی ہے تھوڑا سا ٹی وی دیکھ کر. آپ کی مرضی کہتی ہے رشتے داروں کو خوش کر رہے ہیں. آپ کی مرضی کہتی ہے بچوں کو پہلے ترجیح دے, بچوں کو تو خوش کر لے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, میری جان خدا کی بارگاہوں کی مشتاق. ہماری مرضی خدا کے تابع ہو جائے, ہم اس کو اول درجہ دینا سیکھیں, اور ہم دل سے ہمارے اندر کبھی کسی اور چیز کی خواہش آنے نہ پائے, کبھی کوئی اور خواہش پروان چڑھنے نہ پائے, بلکہ ضرور نبی کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق. میرا دل کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہوں میں جاؤں. اگر آپ سام 42 میں دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح خدا کی پیاسی ہے. ہاللویا. اور اگر ہم ہرنی کو دیکھیں, ہرنی کو جب پیاس لگتی ہے وہ پالوں کی طرح بھاگتی ہے, بھاگتی ہے, بھاگتی ہے, اور ایسے بھاگتی ہے کہ اس کا جو شکاری ہے وہ ہرنی کو نہیں پکڑ سکتا, کیونکہ وہ بڑی تیزی سے بھاگتی ہے. اور میرے سیدھوں سیم اسی طریقے سے جب ہم خدا کی حضوری کے لیے جب ہم بھاگتے ہیں, ہم دوڑتے ہیں, ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں, ابلیس ہمیں پکڑ نہیں سکتا, ابلیس ہمیں چھو نہیں سکتا, ابلیس ہمیں برباد نہیں کر سکتا. اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیری پیاسی ہے. اور آگے وہ کہتا ہے میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے, بلکہ گداز ہو چلی,
गुदास का मैं इंग्लिश में देख रही थी, इट मीन्स के फेंट हो चली, बेहोश हो चली। कैसी बात है कि एक्सट्रीम लेवल पर उसका प्यार है खुदा के साथ, एक्सट्रीम लेवल पर। बाइबल में हम गज़ल गुज़रात में देखें, गज़ल गुज़रात में जिस तरीके से प्यार बयान किया गया है, दुल्हन का खुदा के साथ प्यार बयान किया गया है, सेम ये वही प्यार है कि बेचैन, इतनी कहता है मेरी रूह इस कदर बेचैन है कि मैं फेंट हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे खुदा की हजूरी चाहिए, मुझे खुदा की हजूरी चाहिए। मेरे अजीजों, हम भी ये दुआ करना शुरू करें, खुदा मुझे भी ऐसा कर दे, मुझे भी ऐसा कर दे कि मैं तेरी हजूरी के लिए तरसूं। मैं चर्च में आके, कई दफा हम चर्च में आके कहते हैं पादरी में कुछ भी नहीं करता, तब कुछ भी नहीं होता। आप अपनी जगह पर बैठ के आप रोना पीटना शुरू कर दो, जीसस मुझे तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, और आप अनॉइंटिंग से भर जाएंगे। हालेलुया। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ बाइबल में सैमुएल नबी की। सैमुएल नबी जब हैकल में खिदमत करता था, हैकल में बहुत अच्छा इंतजाम था। नो, हम देखते हैं वहां पर एली काहिन के बेटे क्या कुछ करते थे, बदी करते थे, चोरी करते थे, बहुत कुछ करते थे। और सैमुएल नबी छोटा सा था और वो क्या, वो हैकल से जुदा नहीं होता था। और हम देखते हैं फिर कि वहां पे सारा माहौल वैसे का वैसे ही रहा, एली बर्बाद हो गया, उसके बेटे बर्बाद हो गए, लेकिन हम सैमुएल को देखते हैं कि वो नबी बन गया। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स को छोड़कर खुदा के पर फोकस करना शुरू करें, उसकी हजूरी पर फोकस करना शुरू करें। चर्च में आकर उसकी हजूरी पर फोकस करना शुरू करें, उसके जलाल पर फोकस करना शुरू करें, नील डाउन होना शुरू करें, घुटनों के बल होना शुरू करें। मुझे याद है मैं अपने पार्टनर्स के साथ जब प्रेयर मीटिंग करती, कोई उल्टा होकर प्रेयर कर रहा है, कोई चल फिर के कर रहा है, कोई दीवार के पर अपना सर लगा दिया, किसी ने कैसे कर दिया, किसी ने कैसे कर दिया। ये क्या, हम खुदा की हजूरी में जान पेशानी कर रहे होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पाक रूह को मौका देते हैं कि पाक रूह मुझे कंट्रोल कर, मुझे कंट्रोल कर, ताकि हम गहरी हजूरी में जा सकें। हालेलुया। और मेरे अजीजों, कहता है मेरा दिल और मेरा जिस्म खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ नशरों के खुदा, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मस्कों के पास गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। और अब वहां पर वो क्या देखता है, इस पैरों को देखता है, और ये जो है पहला वाला जो है गुरैया, ये इंग्लिश में इसका है स्पैरो, इसका है चिड़िया, कि ये छोटा सा सिग्निफिकेंस है, छोटी सी होती है। और वो कहता है उसने भी अपना आशियाना क्या पे तेरी हजूरी में बना लिया। हम देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल तो नहीं हम देखते, बोला क्या होता कि चिड़िया क्या करती थी, अपना घोंसला बना लेती थी किसी न किसी जगह जहां पर भी इसको जगह मिलती थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि चिड़िया ने, गुरैया ने अपना आशियाना बना लिया, और दूसरा अबाबील ने भी अपने लिए घोंसला बना लिया। अब ये चिड़िया जो है बिल्कुल छोटा सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक तरह से उस चीज को ये पेश करती है। मेरे अजीजों, अगर आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ससुराल में कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपनी बीवी के सामने कोई वैल्यू नहीं है, आपके अपने हस्बैंड के सामने कोई वैल्यू नहीं है, आप खुदा की हजूरी में आते हैं उस चिड़िया की तरह जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उसने अपना आशियाना वहां पर बना दिया। और दूसरा हम देखते हैं, अबाबील ने अपने लिए क्या बना लिया, घोंसला बना लिया। और अबाबील का अगर देखें कि वो जब रेस्टलेस हो जाती थी तो उसको होता था कि मैं खुद, उसने अपना घोंसला वहां पर बना दिया। ये रेस्टलेस लोगों के लिए है। कलाम में लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको क्या दूंगा, आराम दूंगा। अगर आप रेस्टलेस हैं, अगर आपकी जिंदगी में आराम नहीं है, आपकी जिंदगी में पीस नहीं है, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरे अजीजों उसकी हजूरी की तलाश करना शुरू करें। उसकी हजूरी में आ जाए, उसकी हजूरी आपको घेर देगी, जैसे अबाबील को और उसने गुरैया ने अपना आशियाना बना दिया। आगे वो कहता है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। वो बड़ा खुश होता है कि मुबारक वो लोग हैं, उन लोगों को मुबारक कहा गया जो खुदा के घर में रहते हैं, जो खुदा की
हजूरी में रहते हैं। आगे एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आपके सामने करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं उस चीज को बयान कर सकूँ और बाद में फिर हम प्रेयर में हम आगे जा सकें। देखिए मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराएं हैं। वो वादी बुगास से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना देते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस जमाने में क्या होता था कि लोग यरूशलेम जाते थे, खुदा के घर जाते थे, उसकी तैयारी करते थे, क्योंकि बाइबल में अगर हम देखें, आई थिंक एक्सोडस में लिखा हुआ है कि तुम मेरे घर में 2 बार जो मर्द थे 2 बार साल में वो जरूर हैकल में जाया करते थे। ठीक है ना? हाँ, 2 बार वो जरूर जाते थे, लेकिन जो रास्ता था वो वादी बुका में से गुजर कर जाना पड़ता था, और वादी बुका थी वो अच्छी जगह नहीं थी, ड्राई लैंड था, पानी नहीं था वहां पर, खुश्की थी वहां पर, सब्जा नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो होते थे वो ईमान से स्टेप लेते थे, वो ईमान से स्टेप लेते थे कि हमने वादी बुका में से हमने जाने जाना, क्योंकि उनके दिल में हैकल में जाने की जुस्तजू होती थी, और वो कहते थे कि हम हैकल में जाना है हमने, ताकि हम अपने खुदा को खुश कर सकें। मेरे अजीजों, जब वो ऐसा स्टेप लेते थे और वादी बुका में से गुजरते थे, और कलाम में जैसे लिखा है तो वहां पर क्या हो जाते थे, चश्मे जारी हो जाते थे, और ऐसे चश्मे जारी होते थे कि उनके जानवर भी पानी पीते थे और वो खुद भी पानी पीना शुरू कर देते थे। हालेलुया। सेम मेरे अजीजों, इसी तरीके से हो सकता है आप वादी बुका की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप ड्राइनेस की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप बिल्कुल बंजर जिंदगी है आपकी जिंदगी में वीरानी है, आपकी जिंदगी में खौफ है, आपकी जिंदगी में नाउम्मीदी है, आपको कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपने अपनी नजरें हालात पर लगाई। और हम इन लोगों को देखें, इन्होंने अपनी नजरें वादी बुका पर नहीं लगाई थी, इन्होंने अपनी नजरें हैकल की तरफ लगाई थी, यरूशलेम की तरफ अपनी नजरें लगाई थी, और वो चीज इनको यरूशलेम तक ले गई। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज तौबा करना शुरू करें, मुसीबतों को ना देखें, उसके जलाल को देखना शुरू करें। ये बंदी जो आपके सामने खड़ी है, मैंने भी बड़ी बेवकूफियां की हैं और मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं हालात को देखती रहती थी पहले, और मुझे फिर जब मैंने कलाम पे गौर करना शुरू किया, मुझे कलाम की समझ आ गई कि ये चीजें तो मुझे मजबूत करेंगी, ये चीजें तो मुझे कुंदन बनाएंगी, ये चीजें तो मुझे ऐसा बनाएंगी कि मेरे वसीला से लाखों करोड़ों बनके अरबों लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आंखें बंद करें और अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, अपने सारे हालात को छोड़कर उसकी तारीफ करना शुरू करें। हम मुख्तलिफ मराहल में से हम अभी करेंगे, और मैं थोड़ा सा आपको कुछ और भी अभी गाइड करूंगी। सब अपनी आंखें बंद करें। यहाँ पर कोई बहन, कोई भाई ऐसा है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी। आपने अपनी आंखें बंद कीजिए, मुकम्मल तौर पर अपनी आंखें बंद करें, और एक दूसरे को आपने नहीं देखना। कोई बहन, कोई भाई ऐसा जिसने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, मेरी बहन, मेरा भाई, आज खुदा की तरफ से आपके लिए ये है कि आप अपनी जिंदगी खुदा को देना शुरू करें। आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी किसी को देखा, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। यीशु यहाँ पर मौजूद है। आज वो आपको बड़े अजीब तौर से बदला देगा। आज वो आपको बेटियों में से नहीं, जिसने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बिल्कुल आपने आंखें बंद रखनी है। जो नीचे सारे बैठे, सब ने आंखें बंद रखनी। आपने नहीं देखना कि कौन खड़ा हुआ है। आप और लोग भी खड़े हो जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी। मैं आपके लिए दुआ करना शुरू करूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सिर्फ तौबा करना शुरू करें कि यीशु, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। यीशु, आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देती हूँ। मुझे पार कर, मुझे धो डाल, मुझे आज अपनी बेटी बना ले, मुझे आज अपना बेटा बना ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आमीन तशरीफ रखें नीचे। अब हम दूसरे मरहले में आएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पाक रूह से भरें? पाक रूह से भरना कितने लोग चाहते हैं? अपना हाथ रखें, ऐसे करके ऐसे ऊंचा करके। थैंक यू, नीचे कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मीटिंग में बहुत पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं। ये उसका फजल है। कई दफा 100% लोगों को पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं, कई दफा 90% होते हैं, कई दफा 95% होते हैं, बहुत ज्यादा। और ये बड़े सालों से बाद, आई थिंक 15 साल से 15 से भी ज्यादा साल से खुदा ये काम कर रहा है। और आज खुदा आपको भी पाक रूह से और इसके लिए आपसे मांगना है, क्योंकि कलाम कहता है वो अपने मांगने वालों को रोज रोज क्यों ना देगा। मेरे पास कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, आपको थोड़ा तरीका बताऊंगी और आप रोज रोज से भर जाओगे। आमीन। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक दो गवाही बताती हूँ, आपके अंदर ईमान बढ़ेगा। मुझे याद है एक दफा मैं एक ऐसी जगह पे पर गई जहाँ पर गली में मीटिंग थी और मैं अकेली गई हूँ। वहाँ पे इस कदर बच्चों का शोर था, तो मैं गई हूँ तो मैंने कहा नहीं आज तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना। ऐसे था लिटरली जैसे कोई मेला नहीं लगा होगा। और मैंने दिल में सोचा मैं यहाँ पे आज कुछ नहीं होगा। मुझे एकदम आवाज आई, काम तूने करना है कि मैंने करना है। और मैंने उधर ही रिपेंट किया, मैंने खुदा से माफी मांगी। मैंने कहा जीसस मुझे माफ कर, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ और होली स्पिरिट अब तू आपको कंट्रोल दे दे। यकीन करें मैंने आसमान से फरिश्तों की एक यलगार आती हुई देखी। मुझे नहीं समझ आई वो बच्चों को कहाँ उठा कर दे गई, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। और वहां पर ऐसे जैसे पूरा कंट्रोल पाक के हाथों में आ गया। और आप हैरान होंगे, स्टेज पर मैं गई हूँ और क्या हुआ, लाइट चली गई। अब गली में प्रेयर हो रही हो, लाइट चली जाए, क्या माहौल होगा। लेकिन मेरे दिल में शक नहीं आया, क्योंकि मैंने एंजल्स देख लिए थे, मैंने उसकी आवाज सुन ली थी। मैं कहा जीसस मुझे नहीं पता तू ही काम करेगा। मैंने उनको होली स्पिरिट के बारे में बताना शुरू किया, अंधेरे में बताना शुरू किया। और एक शख्स ने इमरजेंसी लाइट पकड़ी हुई थी और वो मेरे साथ साथ मैंने जब उनको सारा कलाम दिया और मैंने कहा बोलना शुरू करो। और मैं एक के पास गए, खुदावंद के नाम को जला दिले। 99% लोगों ने क्या सुबह ने बोली। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे जी को। अब सिर्फ आप जल्दी आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए अपने कदमों पर। और जितने लोग चाहते हैं कि वो रोल कॉल से भरे वो सामने आ जाए, बाकी पीछे चले जाए। जल्दी आपने जितने अक्षर से प्लीज हेल्प करें। बेटियों आप उर्दू से भरना चाहते हो? जितने भरना चाहते हैं बस वो आगे हैं, जो नहीं चाहते वो प्लीज पीछे चले जाए। हालेलुया। बेटा हालेलुया का कोर्स गाएं आप। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, एक टाइम होगा, गौर से सुनिए। अगर आप गौर से सुनेंगे इसमें काम होगा, अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे काम नहीं होगा। और गौर से आपने क्या सुनना है, एक टाइम होगा आपने उसके पीछे पड़ जाना है कि मुझे अपने पालू से भर दे। आप खूब आपने दुआ करते जाना है, खूब दुआ करते जाना है। फिर मैं आपको कहूँगी स्टॉप। अब आपने उर्दू में, पंजाबी में आपने दुआ नहीं करनी। अब जो जुबान आ रही है वो आपने बोलना और आपने बोलना शुरू कर देना। अगर आप शक करेंगे फिर आप नहीं बोलेंगे। मैंने आपको किसी को नहीं कहना कि आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। नो, ये कोई तरीका नहीं है कि मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे बोलिए। आपके अंदर से प्यार जुबान निकलेगी और ये वो अल्फाज होंगे जिनको आप समझ नहीं सकते और आपने बोलना है। कलाम में लिखा है जो गैर जुबानों में बातें करता है वो किससे बातें करता है? खुदा से बातें करता है। और वो ऐसी जुबान होती है जिसकी हमें समझ नहीं आती। तो मेरे से को तैयार हो जाए। सबसे पहले तौबा करना शुरू करें, सॉफ्ट होना शुरू करें। अगर किसी को माफ नहीं किया, किसी के बारे में कोई ऐसी बात बोली है, तब भी खुदा से माफी मांगना शुरू करें। अपने हाथ बुलंद कर लीजिए।
Jesus. तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नियमों के लिए, तेरे नियमों के लिए, ए खुदा ज़्यादा हो सकते थे, ए खुदा जोर करिए, ए खुदा और प्यास को बढ़ा, और बरत को बढ़ा, ताकि खुदा कृष्णा जिंदगियां तेरे नाम से आज असूला, ए खुदा और विभाग बनाई हो, ए खुदा ये चुनाव से लोग उसके बत्तीस में हो, ए खुदा तेरी ताकत में बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। तेरी जिंदगियों को मांग लेते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ए खुदा उसका जोर यीशु नाम से जारी हो, तेरे भक्त से तेरे नाम से जारी हो मेरे खुदा। Thank you, Jesus. के बैटरी बोल रही है कि बाबा बोला जीवन में बोलना शुक्र है, आँख से बोलना इसी तरह मैं शिफा के लिए आपको गाइड करूंगी और आप शिफा पाएंगे और वो गाइडेंस जो होगी वो कलाम के मुताबिक होगी। ठीक है, कलाम में लिखा है मैंने तुम्हें इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं का कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ और तुम्हें हर किसी चीज से जरूर न पहुंचेगा। ये पढ़ा आपने हवाला, ये किसको बाइबल में किसके लिए किसको कहा था जीसस क्राइस्ट ने? आपने तौबा किया, आप क्या बन गए हैं? ऊंची आवाज में इसमें शिफा आपकी, आप क्या बन गए हैं? और आज आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना। जैसे मैं काटूंगी, आपने भी अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, और मेरे भाई भी मेरे पास आए थे, आपने अपनी बीवी का नाम लेकर उसकी बीमारी को छिड़कना है यीशु के नाम से और आप देखेंगे आप शिफा पाएंगे। मैं जहां कहीं भी जाके ऐसे होता है लोग फिर दवाइयां देते हैं और कई लोग अगर कर नहीं कि पैर में मैं हाथ नहीं रखते, क्या हाथ ऊपर रखना ना, वो नहीं है, मैं हाथ नहीं रखती जब तक मुझे खुदा की तरफ से गाइडेंस ना हो। और मुझे खुदा ने यही गाइडेंस दी है और आप शिफा पाओगे। अपनी आंखें बंद करें और अपनी बीमारी को छिड़कना शुरू करें यीशु के नाम से। जो भी बीमारी है, आर्थराइटिस, यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे हुक्म देती हूँ, छोड़ इनको। और रसोलियों, यीशु नासरी के नाम से छोड़ इनको। बेरोजगारी, यीशु के नाम से छोड़ इनको। इसको पकड़ने आगे से, पकड़ इसको यीशु के नाम से, छोड़ इसको यीशु के नाम से।
चिल्लाती थी, एड़ी में हल्का सा दबा भी सकती थी। अभी देखें आपके सामने मेरी कानों में बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा, मैं चल भी नहीं सकती थी, और इसलिए अपने काम बिल्कुल ठीक हो।